तूफानों का रूह मोड़ दे ऐसा दम रखते हैं, लबों में हंसी और आंखों में नम रखते हैं। तूफानों का रूह मोड़ दे ऐसा दम लगते हैं, लबों पे हंसी और आंखों में नम रखते हैं। ए दुनिया वालों, ना परखो हमारी बहादुरी को, हम वो शोला है जो सांसों में बारूद और जिगर में दम रखते हैं, जो सांसों में बारूद और जिगर में दम रखते हैं। Good evening to one and all present here. My name is Akanksha And my name is Manasvi. We both are the students of Vandile Sir's English Speaking and Personality Development classes. We celebrate all national festivals with great enthusiasm and joyfulness. We all have assembled here to celebrate 76th Independence Day of our nation. We welcome all of you in our today's program. सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। सदा रहे सबके दिलों में प्यार, आती रहे खुशियों की बहार। रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे तालियों के साथ वेलकम, मेहमानों का करे तालियों के साथ वेलकम। So, guest of our today's program, Urmila ma'am and Vaishnavi Kumbalkar had just arrived in the premises of this institution. Welcome them with a thunder of applause. I request all of you to please stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I request all of you to take their seats. अभिवादन हो आप सबका, मोहब्बत की कोई नज़्म सुनाते हैं। अभिवादन हो आप सबका, मोहब्बत की कोई नज़्म सुनाते हैं। माँ सरस्वती के आगे दीप जलाकर आओ मिलकर ये जश्न मनाते हैं, आओ मिलकर ये जश्न मनाते हैं। Now I request our today's guest to proceed for garlanding the portrait of Mahatma Gandhi. Thank you, ma'am. I request our today's guest to take their respective seat. अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होते हैं। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, जिनके आने से आस पूरी होती है। So I request Miss Khushi Lokare to welcome our guest with flower. I request Palak Patrakar to welcome Vaishnavi Kumbalkar. Thank you Palak and thank you ma'am. जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है। जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में जयते जहाँ का नारा है। जहाँ मजहब भाईचारा है, ओ भारत वतन हमारा है, ओ भारत वतन हमारा है। Heroes are not born, but they made once in a history. Do you know, my friend, India is the vast history. India is the cradle of human race, The birthplace of human speech, the mother of legend. and the great grandmother of tradition. So friends, India has completed 75 years of independence. On 22nd July, Prime Minister of India, Narendra Modi, had appealed to people to strengthen Har Ghar Tiranga movement by hosting the national flag in their homes between 13 to 15 August on the completion of 75 years of independence. Without taking our further time, let's begin our program. वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई। वतन हमारा ऐसा ना छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा ना तोड़ पाए कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान। भारत हमारा है, हमें इसकी शान, हमें इसकी शान। Now I would like to call upon Miss Khushi Lokare to express her views on this occasion. Good evening everyone, respected ma'am and all my dear friends. नज़ारे नज़र से कहने लगे, नज़ारे नज़र से कहने लगे, नयन से बड़ी कोई चीज़ नहीं,
तभी मेरे दिल ने ये आवाज़ दी कि वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। Today it's our 76th Independence Day. We should feel proud to be a part of an independent nation. Since 1947, when the country became independent, India celebrated its Independence Day on 15th August every year. We didn't get independence so easily. For this, many brave people had lost their lives. Whatever we are doing today is only for those who lost down their lives. Therefore, the day not only brings happiness to us but also brings sorrow. Every year we get sad by remembering that time of our slavery. But when we remember our freedom, it erases all our pains and sadness. कभी कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पर चल के देख लेना। Indian Army is one of the outstanding armies in the world. Ensuring national security and national unity is the main focus of our army. Our army fighting against external aggression and internal threats and maintain peace and security within Indian border. कैसा भी मौसम हो, जगह कोई भी हो, फरिश्ते की आग जैसे भी हो, समय कुछ भी हो, Indian Army is always ready to give their best for the nation. Saluting the sacrifices and brave, you are a real hero. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूले यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। For an independence of India, an Indian soldier Mangal Pandey in British force, first raised his voice against British. The sacrifices of all the freedom fighters like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, who lost their lives at an early age just to fight for their country can never be forgotten. Gandhiji was a great Indian figure who gave Indians best lesson in non-violence. Every year, Prime Minister hoists flag at a Red Fort. People celebrate Independence Day by hoisting national flag and reading national anthem. We salute our warriors who made this fierce struggle a success. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों पे मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूँ महफिल में चार चांद लगा देंगे यारो, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेंगी, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी। नेक्स्ट, I would like to call upon Miss प्रक्षब्दी बुरबुरे to express her views. ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर जगा, ना धर्माच्या नावावर मरा. माणुसकी हा धर्म आहे या देशाचा. फक्त देशासाठी जगा, फक्त देशासाठी जगा. A very warm evening to everyone. I am Prakshapti Burbure and today I am standing here to express my views on Independence Day. Today we all are gathered here to celebrate Independence Day. But not only the Independence Day, the sacrifices of freedom fighters, freedom struggles, sacrifices of Indian Army and many things. Freedom in mind, strength in words, faith in soul, zeal in our heart. Let's salute our great country on Independence Day. Independence Day is a golden day in our Indian history. On 15 August 1947, we got independence from Britishers. But not only from the Britishers, we got independence from many kings. Our country, our Indian people was not suffering the slavery only for 200 years, but more than 200 years. I would like to share a poem with you all which belongs to freedom struggle. Once there was a country full of boys complimentary. It was also called Sone Ki Chidiya. It's one and only India. India was famous for diamonds and they don't want any demand. They were becoming superpower soon. But there came a gloom. The gloomy was the rule of Britishers
which became for India a punish. The Britishers' rule grew and grew. The unruled states were left very few. Then many freedom fighters came which forced the Britishers to stop their game. This made the India united and unity in diversity spreaded. At last, in the year of 1947, India got independence. And it made the India united and stronger, and no diversity was longer. Now, I would like to tell you that if we say who gave us freedom, so you may say Mahatma Gandhi or any leader, but there are many leaders to talk about them and their bravery. When there was a rule of Britishers, there were many states which were in the control of Britishers, but only few states were left which were not in the control of Britishers, and one of them was Jhansi. The fort of Jhansi ki Rani Lakshmibai, she was the queen of that fort, and that fort became famous because of her bravery. She fought a battle with Britishers and by taking her baby on her back, and this was a outstanding thing which people never forget. I just would like to say that झांसी की वो रानी थी, बहादुर थी, मर्दानी थी. झांसी की वो रानी थी, बहादुर थी, मर्दानी थी. इतिहास के पन्नों पर लिखी उसकी अमर कहानी थी. झांसी की वो रानी थी, झांसी की वो रानी थी. Today we have completed 75 years of independence. This is a great thing to celebrate, isn't it? From 1947 till 2022, our India had made many achievements, many developments in it. And one of the great thing is that India had a title of largest democratic country. And on this title, I would like to share a story with you all. So, when there was a rule of Britishers, there was a case going on in the Supreme Court. The case was India's Independence Bill 1947, and at that time, one of the Britishers said that what this Indian people will do if they get independence. They don't know the meaning of democracy. They had never practiced democracy, and if they will get the independence, so there may be battles, wars, bloodsheds. But now you can see, friends, we have a title of largest democratic country in the world, and this is a great thing. So, Dr. Babasaheb Ambedkar had said that life should be great rather than long. It means that having a shorter life is better. If we have shorter life and we are doing great thing, is better than having a longer life doing nothing. If we have taken birth on this motherland, so we have to do something for it. We have to contribute something for it. जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है. जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है. जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी. If I ask you what is meant by patriotism, you may say that dying for the nation, it means patriotism. Yes, it may, but everyone is not ready to give their life. Yeah, so you can show your love towards your nation by keeping your surrounding clean, by keeping your surrounding green, means by planting trees. You can remove corruption from your country. You can remove inequality from your country. You can remove violence from your country. And if you will start from yourself, after in your home, then after in your colony or in area, afterwards in your city, then in your district, then in your state, and at last in your country. And this will be your achievement. So, at last I want to say that don't ask your country what can it do for you. Don't ask your country what can it do for you. Ask what you can do for your country. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next, I would like to call upon Miss Anushka Ambedkar to express her views.
आदरणीय शिक्षक श्री वांदिले सर और मेरे प्यारे सभी दोस्तों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम विरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमल आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। और उसकी आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में रास्ते पर तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप इसे देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, तो अंत में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद। थैंक यू अनुष्का। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है, Now I would like to call हर्ष पत्रकार to express his thought. तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। सेवा करनी है तो इस देश की करो, इन लोगों में क्या रखा है। Very warm morning to Honorable Vandile sir, respected teachers and all my dear friends. Now I am delivered to speech on Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We celebrate this day on 15th August every year. On 15 August 1947, India became independent. This year in 2022, we will celebrate on 75th Independence Day of India. Today I am looking everyone is happy because in this day we got independence. We got real right our national leaders had done labor and because Shahid for our country. For example, Bhagat Singh, Rajguru, Shivaji Maharaj, many national heroes that we cannot count their name. But Mahatma Gandhi was the main hero who had done one of the best program to run away to Englishmen from our country India. दिल हमारा एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। जान लुटा देंगे वतन पे हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। Friends, thank you for listening my speech. जय हिंद, जय भारत। वह कौन है जो पंखों से भी हल्का है पर शक्तिशाली व्यक्ति भी उसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकते? No. So the answer is SAS. SAS. Breathing. So now I would like to call upon Shruti Sute to express her views. जश्न आज़ादी का मुबारक हो उन देश वालों को। जश्न आज़ादी का मुबारक हो उन देश वालों को। फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को। गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, रिस्पेक्टेड ऑल सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज श्रुति सुटे। वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे and I speak few words on Independence Day. Politics, simply speaking, and refers to the activities surrounding a country's governments in the context of a large democratic country. Like India, politics of a large becomes really complicated like India.
Politics is will throw light on the politics of India. Politics in India, like any other democratic country, involves the ruling party and the opposition. India, the political parties has taken place on the basis of ideology. Moreover, the India political parties belong to the left and the right spectrum. करती हूँ सलाम उन वीरों को जो देश की शान है, करती हूँ सलाम उन वीरों को जो देश की शान है, रहेगा ऊंचा तिरंगा जब तक कतरे कतरे में जान है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू श्रुति. Now we would like to express a शायरी among you. देखो हमारी ओर, पहचानो हमें. हम वही है जो बांध भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे. एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे. हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए. और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर भी पानी में तैर गए. हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी. हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो वैक्सीन बनाई. और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया. हम जाबाज है, जियाले हैं, अंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं. पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं. आज़ादी को कभी नीलाम ना होने देंगे, आज़ादी को कभी नीलाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बेजार ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बेजार ना होने देंगे. जब तक एक एक कतरे में लहू की बूंद है, जब तक एक एक कतरे में लहू की बूंद है, तब तक भारत माँ का सर झुकने न देंगे, तब तक भारत माँ का सर झुकने न देंगे. आदरणीय शिक्षक श्री वांदिले सर और मेरे प्यारे सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज हम अपने देश के 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था. हमारे देश को आज़ाद करवाने में कई महान पुरुषों का कठोर संघर्ष है. इस आज़ादी के पीछे हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है. ये दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और कठोर संघर्ष की याद दिलाता है. हमारे देश को आज़ाद हुए कई वर्ष हो चुके हैं. इस दौरान हमारा देश भारत कृषि, शिक्षा, खेल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और कई क्षेत्रों से तेज़ी से विकसित हुआ है. लेकिन यह भी बात सच है कि आज भी ऐसी कई मुद्दे हैं जो भारत को पूरी तरह से विकसित करने में बाधा डाल रहे हैं. जैसे कि अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी आदि. हम सभी एक होकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए संकल्प लेना चाहिए. तो आइए हम सब मिलकर काम करें और अपने देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाएं. हम अपने आप से एक वादा करें कि हमें अपने देश की रक्षा करेंगे, भाईचारा बनाए रखेंगे, सबकी मदद करेंगे और खुद को शिक्षित करेंगे. देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है. हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू जय. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा. आज़ादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता है तिरंगा हमारा, कि बुलंदी पर लहराता है तिरंगा हमारा. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मास्टर तेजस चापले टू एक्सप्रेस हिज थॉट. तिरंगा झंडा फडकतो सारे जय जयकार बोला, तिरंगा झंडा फडकतो सारे जय जयकार बोला. 15 ऑगस्ट अभिमानाचा आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. 15 ऑगस्ट अभिमानाचा आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माय नेम इज तेजस. आज आपणासमोर
15 ऑगस्ट निमित्त माझे मनोगत व्यक्त करत आहे. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा. मित्र हो, आज आपण सर्वजण इथे भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी जमलो आहोत. आपला भारत देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी मोलाचे योगदान दिले. आपल्याला त्यांचा आदर केला पाहिजे. आजही आपल्या देशाचे सैनिक सीमेवर अहोरात्र देशाचे रक्षण करीत आहे. आज आपण त्यांच्यामुळे आनंद स्वतंत्र भारत देशात राहत आहोत. 15 ऑगस्ट हा आपला एक राष्ट्रीय सण आहे. आपला भारत जगातील एक सर्वात चांगला देश आहे. आपण त्यांची अजून प्रगती करूया. विविधतेत एकता हीच आपल्या भारताची शान. प्रत्येक देशवासियाला येथे सारखा मिळतो सन्मान. हर घर तिरंगा अभियान भारताची वाढवेल शान. थँक्यू. जय हिंद, जय भारत. Thank you, Tejas. Now I would like to call upon Miss Dipali Suryavanshi to express her views. सुंदर है जग में नाम भी है न्यारा, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की है धारा. निचल पवन प्रेम पुराना वो भारत देश हमारा. आदरणीय वांदिले सर और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं. सर्वप्रथम सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि मला या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे म्हणून एक मान दिला त्याबद्दल मी वांदिले सरांचं सुद्धा आभार मानते प्रथमतः. आणि या सौजन्याने मला या ठिकाणी बोलण्याची संधीसुद्धा दिली त्याबद्दल धन्यवाद. स्वातंत्र्य दिन म्हणजे काय, तर आपल्याला 1947ला स्वातंत्र्य मिळालं. आपण 150 वर्ष राज्य केलं. इंग्रजांनी एक नाही तर 150 वर्ष राज्य केलं. एक व्यापार म्हणून आले होते. एक कपड्याचा व्यापार कसा करायचा, एखादी गावामध्ये जर व्यापारी करायला लोक येत असतो त्या पद्धतीने आपल्या गावात आणि आपल्या देशामध्ये त्यांनी असं म्हणजे शिरकाव केला. आणि त्यांनी आपल्या हळूहळू आपल्या देशावरती काय केलं, राज्य केलं. आणि तेही 150 वर्ष. आणि अतिशय गुलामगिरीत आपण आपलं जीवन जगलं. आपण त्यावेळेस नव्हतो, परंतु आपल्या आजोबा होते नाही होते, पण त्याही काळामध्ये जसे महात्मा गांधी होते, सुभाषचंद्र बोस होते, भगतसिंग, राजगुरू, हे सगळे जे क्रांतिकारी लोक होते त्यांना चीड आली. एखाद्याला चीड येते आणि चीड आल्याच्या नंतर कशी क्रांती होती हे आपल्याला दिसून आलं. म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं. आणि तो दिवस आपण प्रत्येक दिवशी हा 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस आपण स्वातंत्र्य दिन म्हणून प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक भारतामध्ये आपण साजरा करत असतो. आणि प्रत्येकाला अभिमान आहे की मी एक भारतीय आहे. त्या दिवशी ज्या लढायांनी जे स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी आपल्याला लढा दिलेला आहे त्या लोकांची आपण एक आठवण म्हणून त्या दिवसाला आपण त्यांना स्मरण करत असतो. परंतु स्वातंत्र्य दिन तर हे आपल्याला मिळालेलंच आहे, पण हेही कसं टिकून राहता येईल, हे स्वातंत्र्य कसं टिकून राहता येईल यासाठीही आपल्याला प्रत्येकाला एक आपण जबाबदार व्यक्ती म्हणून कसं राहता येईल आणि प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी जर पार पाडली तर नक्कीच आपल्या या देशाचा आपण चांगल्या प्रकारे विकास करू शकतो. जसं आरोग्य आहे, शिक्षण आहे, पाणी आहे, या सगळ्या ज्या गरज आहे, पर्यावरण आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीची जर आपण आजच्या काळामध्ये जर म्हटलं तर खूप गरज आहे. कारण कोरोना आला, कोरोनामुळे आपली परिस्थितीसुद्धा खूप सगळ्यांची बिकट झालेली होती, परंतु यावरही सुद्धा आपण काय केलेलं आहे, मात केलेली आहे. अशाच प्रकारे जर आपल्याला विकास करायचा असेल तर प्रत्येकाने एकोप्याने परस्पर चांगल्या भावनेने एकमेकांच्या संबंधाने आजूबाजूचा जो परिसर आहे तो कसा स्वच्छ ठेवला पाहिजे, पर्यावरण कसं स्वच्छ ठेवलं पाहिजे, पर्यावरणाला कसं टिकवता आलं, ही जी नैसर्गिक संपत्ती आहे त्याला आपल्याला कसं टिकवता येईल, हे सुद्धा एक आपल्याला खूप मोठी काळाची गरज आहे. आणि प्रत्येकाने आपण एक स्वतंत्र आहो, भारतीय आहो, त्याचा प्रत्येकाला गर्व असला पाहिजे. आणि मला या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचं आभार, धन्यवाद. जय हिंद. थैंक यू मैम. आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है. आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है. जब भी आप आते हैं मंच पर तालियों से महफिल सजा करते हैं, तालियों से महफिल सजा करते हैं.
So now I would like to call Vandile sir to grace us with their thoughts and experience. Actually, I am not in mood to speak some sentences before you, but even because I came from long journey, I went for the workshop and I came late, so sorry for it. Respected Ubila ma'am, respected Vaishnavi Kumbalkar, and both are great anchor who performing nicely before all of you and entertaining you, and so many of you tried very nicely. You delivered your speech, and so that I welcome you all for this program. And more than that, who didn't participate in this program, even they came as an audience and enlighten our program. I'm also going to welcome them. And today is a very auspicious day because we all are celebrating 75 Independence Day. You can say to it in Hindi, Amrit Mahotsav of the nation. Actually, why are we going to celebrate this Independence Day? That is a question before all of us. Some of sentence I speak in Hindi also. हा 75वा अमृत महोत्सव आपण का साजरा करतो? जेव्हा आपण एखादी गोष्ट सेलिब्रेट करतो तेव्हा ती गोष्ट सेलिब्रेट करण्याच्या मागे एक इतिहास असतो. तो इतिहास काय असते? वी हॅव टू पॉइंट आउट इट. असं नाही की 15 ऑगस्ट 1947ला आपण स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्य हे खूप मोठा विषय आहे आपल्याकरता. इट इज अ बिग इश्यू फॉर ऑल ऑफ अस. तुम्ही म्हणाल सर हा एवढा मोठा विषय का आहे? कारण आपल्या देशाची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950ला अंमलात आली, बरोबर. त्या राज्यघटनेमध्ये आपल्याला दुनियाभराचे राईट्स मिळाले. दुनियाभराचे राईट्स कोणते मिळाले? त्यामध्ये आपला आवर फर्स्ट राईट वॉज राईट ऑफ इक्वॅलिटी. हा राईट ऑफ इक्वॅलिटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी का दिला? याचा अर्थ भारतामध्ये बिफोर इंडिपेंडन्स इक्वॅलिटी नसेल, विषमता असेल, देअर वॉज अ प्रॉब्लेम ऑफ डिस्पॅरिटी. आपला देश जातीच्या नावाखाली, पंथाच्या नावाखाली, धर्माच्या नावाखाली, श्रद्धेच्या नावाखाली, परंपरेच्या नावाखाली वाटला गेला होता. कोणीच कोणाचा नव्हता. तू या जातीचा आहे, तू त्या जातीचा आहे, मी उच्च आहो, तू नीच आहे. देअर वॉज अ प्रॉब्लेम ऑफ डिस्पॅरिटी. देअर वॉज अ प्रॉब्लेम ऑफ पार्शॅलिटी. म्हणजे कोणीच एका कार्यक्रमाला हजारो लोक एकत्र येऊ शकत नव्हते. हीच गोष्ट विदेशी लोकांनी ओळखली. दे रिकग्नाइज्ड या देशामध्ये एकता नाही आहे, या देशामध्ये भाईचारा नाही आहे, या लोकांमध्ये देशप्रेम नाही आहे. या लोकांना आपण केव्हाही आक्रमण करू शकतो, यांना केव्हाही हरवू शकतो, बरोबर. आणि असे कयो लोक आले भारतावर, राज्य करून दिले. पोर्तुगीज आले, फ्रेंच आले, डच आले, मोगल आले, ब्रिटिश आले. आणि प्रत्येकाला माहीत होतं या देशाची पॉप्युलेशन अमाप आहे, पॉप्युलेशनचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण पुरे लोक खतम आहे. खतम का आहे? कोणाच्या नावाखाली खतम आहे? जातीच्या नावाखाली, पंथाच्या नावाखाली, धर्माच्या नावाखाली. अनटचॅबिलिटी प्रॉब्लेम आहे आणि दुनियाभराचे प्रॉब्लेम आहे. हे लोक जनावरासारखे आहे, म्हणून याच्यावर कोणीही राज्य करू शकते, हा देश कोणीही जिंकू शकते. हे पॉईंट ऑफ व्ह्यू होता. दुसरा मुद्दा, कल्चरच्या नावाखाली स्त्रियांवर खूप मोठा अन्याय होता. अन्याय कसा होता पहा? बुरखा प्रथा, सती प्रथा, बालविवाह प्रथा, आणि मला आठवत नाही तेवढ्या प्रथा भारतामध्ये होत्या. देअर वर सो मेनी ट्रॅडिशन अँड कस्टम्स वर अवायलेबल इन इंडिया. आणि या प्रत्येकाली स्त्री हे पूर्णपणे दबून गेली होती. तिची पर्सनॅलिटी म्हणजे व्यक्तिमत्व असतं. मी काहीतरी आहो, आय एम समथिंग, आय हॅव सम पर्सनॅलिटी. हे पर्सनॅलिटी नावाची वस्तू नाही का स्त्रीमध्ये होतीच नाही. आता आपण इंडिपेंडन्स डे साजरा करतो, एवढा सर्व अन्याय अपमान आपल्याला होता. आपण गुलाम होतो, आपण मेंटल गुलाम होतो. आताही भारतात एवढं मोठं स्वातंत्र्य भेटल्यानंतरही काही स्त्रिया, काही पुरुष हे मेंटल गुलाम आहे, फिजिकल गुलाम नाही आहे. कारण गुलामीची प्रकार आहे. पहिला आहे वैचारिक गुलाम, मग आर्थिक गुलाम, मग शारीरिक गुलाम, आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे गुलामीचे सुद्धा प्रकार आहे. बरं लक्षात घ्या. आता आपण आपल्या राज्यघटनेनं आपल्याला फ्रीडम ऑफ स्पीच दिला आहे, फ्रीडम ऑफ एज्युकेशन दिला आहे,
फ्रीडम ऑफ रिलिजन दिला आहे. कलम नंबर 51 नुसार आपल्याला धार्मिक स्वातंत्र्य आहे. आपण कोणताही प्रोग्राम कोणी केव्हाही कसाही म्हणू शकते. कोणी आपल्या कोणाच्या विरोधात आपल्याला बोलायचं स्वातंत्र्य आहे. वी हॅव राईट्स टू स्टॉक अगेन्स्ट एनी पर्सन. नरेंद्र मोदीच्या खिलाफमध्ये आपण बोलू शकतो. आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशननं राईट्स दिला आहे. आपण आपलं मत मांडू शकतो. कारण डेमोक्रेसी म्हणजे काय होते? लोकांचे राज्य, लोकांकरता राज्य आणि लोकांनी चालवलेलं राज्य. लोकांसाठी राज्य, लोकांचे राज्य, लोकांकरता राज्य आणि लोकांनी चालवलेलं राज्य. म्हणजे तुम्हीच या राज्याचे नौकर आहात, मालक हा, चालक मालक तुम्हीच आहात. यू आर द चीफ ऑफ दिस नेशन. बरोबर. प्रत्येकाला कलम नंबर 125 नुसार राईट ऑफ वोट मिळाला. माहीत आहे? जो अधिकार अनिल अंबानीला मिळाला आहे, मुकेश अंबानीला मिळाला आहे, तोच अधिकार एका गरीब माणसाला मिळाला आहे. जर मुकेश अंबानीनं खून केला त्याला ते सजा होते जे एका गरीब माणसानं केला तरी होते. म्हणजे इक्वॅलिटी बिफोर लॉ, कायद्यासमोर आज सर्व समान आहे. हे फ्रीडम आहे. या फ्रीडमचं महत्त्व आहे की कायद्यासमोर सर्व कसे आहे? समान आहे. न्याय सर्वाले समान द्यावं लागते. न्यायाची परिभाषा समानता आहे. बरोबर आहे? कळलं का तुम्हाला? तुम्हाला प्रत्येक प्रकारचं फ्रीडम मिळालं आहे आज. सर्वात जास्त फ्रीडम स्वातंत्र्यानंतर महिलांना मिळालं भारतामध्ये. महिलांना सर्वात जास्त फ्रीडम का दिलं माहिती आहे? कारण महिला सर्वात जास्त गुलाम होत्या. आणि आजही भारत जगातून मागे आहे. याच्या मागचं सर्वात मोठं कारण आहे की भारतातल्या स्त्रिया अजूनही जुन्या परंपरेला, चालीरीतीला चिपकून बसलेल्या आहेत. त्यांना कॉन्स्टिट्यूशननं राईट्स दिल्यानंतरही त्या जुन्या चालीरीतीच्या परंपरेच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. उपास तपासाच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. पूजापाठच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. होम हवनच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. राशी भविष्याच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. नशिबाच्या बाहेर निघायला तयार नाही आहे. आणि या देश जर जगामध्ये मागं असेल ना तर मला कधी कधी वाईट वाटते. हे वाक्य मी बोलायला नाही पाहिजे, पण भारताच्या स्त्रियांना राज्यघटनेनं एवढं मोठं स्वातंत्र्य दिल्यावरही त्या स्वतःचं स्वातंत्र्य एन्जॉय करत नाही. त्या स्वतःच्या स्वातंत्र्याची जाणीव ठेवत नाही आहे. त्या इमानदारीनं राज्यघटना वाचत नाही आहे. गीताई स्तोत्र वाचन, लक्ष्मीचं व्रत वाचन, संतोषी व्रताचं व्रत वाचेल. पण ज्या ग्रंथानं आपल्याला फ्रीडम दिला आहे ते फ्रीडमचं ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन त्या वाचत नाही. हे देशाची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. मला असं मनापासून वाटते धिस पॉलिसी शुड बी चेंज्ड. धिस ॲटिट्यूड यू मस्ट चेंज. आणि हे स्वातंत्र्य मला वाटते तुम्हाला हजारो वर्षानंतर मिळालेलं आहे. खूप दुःख, खूप हालअपेष्टा, कधी कधी नाही का गुलामांना वाटतं का हेच जीवन आहे. म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी वाक्य म्हटलं होतं, गुलामांना गुलामीची जाणीव करून द्या, मग ते बंड करून उठेल. पण गुलामांना हेच माहीत नाही मी गुलामा म्हणून. तो गुलामीला एन्जॉय करत आहे. त्याला हे माहीत नाही आहे की मंदिरात दगड असते, देव हा आपल्या मनात असते, पण तो दगडलाच देव मानत आहे. आता हे त्याला कोण माहीत करून देईल? मी तर माहीत करून देऊ शकत नाही, कारण मी तेवढा महान व्यक्ती नाही. तुम्ही माहीत करून घेऊ शकत नाही, कारण तुम्ही वाचन करू शकत नाही. तुमचं सर्वात मोठं शस्त्र आजच्या काळामध्ये काय आहे? ब्रेन आणि पेन आहे. जुन्या काळामध्ये शस्त्र होतं तलवार, नंतर बंदूक आली, नंतर बॉम्ब आले, नंतर बारूद आली, जे याचं ते आलं. पण आजचा शस्त्र ब्रेन आणि पेन आहे. आता ब्रेन वापरण्याकरता वाचन पाहिजे, अभ्यास पाहिजे, राज्यघटनेचं नॉलेज पाहिजे, अवांतर वाचन पाहिजे. हे मानसिकता तुम्ही डेव्हलप करायला पाहिजे. हे तुमच्या हातामध्ये आहे. तुम्हाला संधी मिळालेली आहे. संधीचं सोनं तुम्हाला करायचं आहे. कारण मित्रांनो, एक इंग्लिशमध्ये म्हण आहे, अपॉर्च्युनिटी कम थ्रू डोअर अँड गोज थ्रू विंडो, सो प्लीज ट्राई टू कैच इट. शेर शायरी में बहुत दम होता है. हजारों वाक्य एक छोटा सा शेर बता जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है. बराबर है. हमारे देश की अब सिचुएशन मैं शेर शायरी के माध्यम से थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने. देखो दोस्तों, एक कविता है, शेर शायरी के टाइप की है. बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखो, मगर दोस्तों बहती धारा क्या होगा? तुम नदियों के नाम रख सकते हो, लेकिन तुम बहती धाराओं का नाम नहीं रख सकते.
रख सकते क्या? शिव की गंगा भी पानी है, लोग शिव की गंगा बोलते हैं, लेकिन वो क्या है? पानी है। अबे जमजम भी पानी है, वो अबे जमजम एक तीर्थ शस्त्र है मुस्लिम समाजों का, वो भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजबा क्या होगा? कैन यू से, कैन यू टेल रिलीजन ऑफ वाटर? कैन यू टेल? पानी आफ्टर ऑल पानी है। इन फिर कापरस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? जिसने अलग अलग हमको बांटा है उनको पूछो तुम, क्या तुम सूरज अलग बनाओगे? बना सकते हो सूरज अलग को? नस्लों का जो इस हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग बनाओगे? क्या लोग ने ये धर्म, वो धर्म, ये जात, वो पात, वो पंथ किया है, क्या वो वो हवा अलग बना सकते हैं? हवा को धर्म का नाम दे सकते हैं? हवा को जात का नाम दे सकते हैं? हवा पे किसी पर्टिकुलर इंसान का क्या बोलते हैं, मालकी हक है? नहीं है। नस्लों का जो करे बंटवारा वो कौम का ढोंग है। जो हमको बांट रहे हैं ना वो ढोंगी लोग हैं। जो हमको एक नहीं रहने दे रहे वो कौन से लोग हैं? ढोंगी लोग हैं। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा या राम ने मस्जिद तोड़ी है? और कोई खुदा आया था मंदिर तोड़ने के लिए, कोई राम आया था मस्जिद तोड़ने के लिए? ये जिन्होंने हमें बांटा है ना वो फालतू के लफड़े तैयार कर रहा है, हम में प्रॉब्लम तैयार कर रहा है। बराबर है? इसलिए दोस्तों हमारी एकता ही हमारी पहचान है। तभी तो हम बोल सकते हैं अगर हम एक होंगे तो हमारा भारत देश महान है। बराबर है? तो हमें अगर अपने देश को महान रखना है तो हमें सिर्फ इंसानियत को पढ़ाना है, इंसानियत पढ़नी है। वी शुड बी ह्यूमैन बीइंग, वी शुड बी ह्यूमैन बीइंग। हम मानव होना चाहिए। जात, धर्म, पंथ, वंश सिर्फ इंसानों ने बनाए हैं। बराबर है? तुम सभी इंसानों को एक लाइन में नॉर्मल कपड़े पहनाते हुए खड़े कर दो, कोई नहीं पहचान सकता ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। सबका ब्लड कैसा है? सरीका है। बराबर है? सबको दो आँखें हैं, सबको दो कान है, सबको बोलने के लिए मुंह है, सबको दो हाथ है, सबको 5 फिंगर है। बराबर है? ये सब फालतू की बकवास है, फालतू की बातें हैं। काम की बातें कौन सी है? काम की बातें हैं तुम्हारे पास क्या टैलेंट है, तुम कौन सा टैलेंट डेवलप कर सकते हो, तुम कौन सी क्रिएटिविटी दुनिया में ला सकते हो, तुम कैसे ह्यूमैनिटी की बातें कर सकते हो, तुम समाज का, देश का कैसे भला कर सकते हो, तुम कौन सा मिसाइल को ढूंढ सकते हो। तुमको मालूम है APJ अब्दुल कलाम वो जाति धर्म से ऊपर है। ऐसे इंसान हमें चाहिए जो जाति धर्म से ऊपर होके भी एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग बनता है, एक फरिश्ता बनता है, जो देश को आगे बढ़ाने के काम आता है। इसलिए दोस्तों हमें थोड़ा सोचना होगा, हमें फालतू चीज़ों पे फोकस ना करते हुए हमें विकास के लिए फोकस करना होगा। और विकास किसी इंसान का नाम नहीं है फिलहाल के वक्त में। विकास यानी प्रोग्रेस, तरक्की। बराबर है? तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ और मेरे बातों को पूर्णविराम देता हूँ। अपने देश में किस प्रकार की डाइवर्सिटी है? डाइवर्सिटी यानी विविधता। देखो अपने देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, धर्म अलग अलग है। अपने देश में वंश अलग अलग है, रेशियल डाइवर्सिटी है। अपने देश में कास्ट अलग अलग है, कास्ट डाइवर्सिटी है। अपने देश में अलग अलग कल्चर है, मालूम है ना आपको? ये कल्चर, वो कल्चर, वो कल्चर। अपने देश का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, उसके बावजूद भी अपना देश एक है। और कोई भी देश एक तभी होता है जब उस देश के इंसानों के पास ह्यूमैनिटी नाम का गुण होता है, उस देश के पास एजुकेशन होता है, उस देश के पास आरोग्य होता है। बराबर है? उस देश के पास समानता होती है, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, ये बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्य होते हैं। वो देश हमेशा एक होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा इंसान है जिन्होंने 75,000 कास्ट को सिर्फ 9 सामाजिक समूह में डिवाइड किया। अभी हमारे पास कास्ट नहीं रही। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो हमारा भारत है, हिंदुस्तान हमारा देश नहीं है। हिंदुस्तान ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग वर्ड है। तुम लगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसमें पहला आर्टिकल देखो, उसमें लिखा है इंडिया इज अ भारत। बराबर है? इसलिए जब कोई शेर शायरी बोलता है, अगर मुझे एक शेर शायरी बोलना है तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा? देश भक्तों से ही देश की शान है,
देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की आन है। हम उन देश के फूल है यारो जिस देश का नाम भारत है। वह हिंदुस्तान मत बोलो, क्योंकि जब हिंदुस्तान शब्द आता है ना तो हिंदू आता है, बाद में हिंदू आता है तो क्या आता है, मुस्लिम आता है। और जो कुछ लोग बैठे हुए हैं ढोंग करने वाले, वो दोनों में झगड़ा लगाने के काम आते हैं। मालूम है क्या, शब्द छल, शब्द कपट खेलते हैं वो लोग हमारे पास। शब्द कपट है बरा। अरे बाबा, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड प्रधानमंत्री है, पंत प्रधान नहीं है। पंत एक ब्राह्मण लोगों को दी हुई उपाधि है, लेकिन उन्होंने क्या क्या उसको प्रधानमंत्री नहीं रखा, उन्होंने क्या रखा, हाँ, मतदान शब्द नहीं है, वो शब्द रॉन्ग है। मत कोई दान देने की चीज़ नहीं है, वो शब्द है मताधिकार, राइट्स ऑफ वोट्स, मताधिकार शब्द है। लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग उतने लॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मैजिक चलता है, हमारे देश में लॉजिक नहीं चलता है। जिस देश में मैजिक चलता है ना, वो देश खत्म होता है। हमारे देश में क्या चलना चाहिए, लॉजिक चलना चाहिए, बराबर है। ये जो मैं खड़ा हूँ ना यार, ये व्यासपीठ नहीं है, विचारपीठ है। विचारपीठ क्या है, विचारपीठ। लेकिन हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम एवढी इतनी रद्दाड़ है कि भज्जी का पढ़ाते हैं। भज्जी एक विशिष्ट धर्म की निशानी है। पढ़ाना चाहिए भाकरी का, भाकर सबके लिए समान है ना, भाकर इज इक्वल फॉर ऑल। भाकर सभी खाते हैं, सभी को पेट है। भाकर सभी खाते हैं, इंग्लैंड का भी खाता है, अमेरिका भी खाता है, फ्रांस का भी खाता है, सभी खाते हैं ना, बराबर ना। पढ़ाने का मटन का पढ़ाओ, मटन सभी दुनिया में समान है बराबर है। जो चीज़ है ना पूरी दुनिया में कॉमन है वो पढ़ाओ नहीं यार, तुम किसी एक पर्टिकुलर लोगों को प्राधान्य दे रहे हो, सबके लिए समानता रखो, बराबर है। तो मुझे मालूम है समय बीतते जा रहा है। एक शेर शायरी मैं आपके लिए रख देता हूँ। वैसा मुझे उतना नॉलेज नहीं है शेर शायरी का, लेकिन कैसा है, अभी अपने क्लास में लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं, तो प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए शेर शायरी को जरूरी है। हमारा राइट और रॉन्ग? तो एक ऐसी शेर शायरी है, कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के चालों, हालों और गालों पे मर गए। कभी सलमान के बालों, कभी कटरीना के चालों, हालों और गालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु हम किन सालों के लिए मर गए। और अभी हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा आज़ादी का जुनून सवार हुआ तो हम एक शेर शायरी गाते हैं, गाते नहीं है क्या बोलते उसको, बोलते हैं, वो होते हैं, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बराबर है। लेकिन ये सब बोलने की बात होती है। भारत माता का सच्चा सुपुत वो है जो इंसानियत को मानता है, जो समानता को मानता है, जो न्याय को मानता है। न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 तत्व है, उस तत्व को जो मानता है, बराबर है, वही भारत का सच्चा सुपुत है। जिसके पास इंसानियत है वही भारत का सच्चा सुपुत है, बराबर है। और मैं ये बात को फिर से मानता हूँ, भारत माता हमारे लिए महान क्यों है, आखिरी स्टेप में बताऊँ। हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया है, हमारी माँ, वो हमें 9 महीने 9 दिन गर्भ में पालते हैं। लेकिन ये भारत माता जिसको हम ज़्यादा मानते हैं, वो हमें मरते दम तक पालती है। ये मानते हो क्या? ये ज़मीन से हम अनाज निकालते हैं, अनाज खाते हैं, ये ज़मीन पे हम चलते हैं, ये ज़मीन पे हम रोड बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ये ज़मीन से हमें फ्री में पानी मिलता है। ये भारत माता हमें पेड़ पौधे देती है, फल फूल देती है, फ्री में हवा देती है। यहाँ से हमें क्या नहीं मिलता है, हर चीज़ हमें इस भारत माता से मिलती है, ये माता से मिलती है। इसलिए हमारे ज़मीन की रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना, हमारे ज़मीन के लिए इंच इंच के लिए जान न्यौछावर करना, ये हमारा कर्तव्य होता है, बराबर है। और जो यहाँ रहता है, जो यहाँ रहता है, वो सब भारत माता का सुपुत्र है, बराबर है। इसलिए मैं मेरे दोस्तों, जान दो, मैं आखिरकार आपको ये बताता हूँ, मेरी भी स्पीच खत्म हो चुकी है, खत्म हो रही है अभी, कि तुम्हें एजुकेटेड बनना पड़ेगा, तुमको स्टडीज़ बनना पड़ेगा। और तुम्हें लड़कियों को खासकर बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ है, तुम्हें तुम्हारे फ्रीडम को अंडरस्टैंड करने के लिए, तुम्हारा फ्रीडम का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना होगा।
और रियल फ्रीडम के का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और देश को बदलने के लिए आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई इंसान रोल नहीं प्ले करेगा, तुम्हारे फ्रीडम के लिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। इंग्लैंड में औरतें गुलाम थी, मालूम है, 400-500 साल 6-7 साल पहले। तो वह औरतों ने आंदोलन किया कि हमें इंसान के बराबर का हक चाहिए, कंधे से कंधा रखकर हम इंसान के साथ काम करेंगे। कितनी तो ये महिलाएं ने गोलियां खाई, वो मरी। उस जमाने का आंदोलन सक्सेसफुल हुआ और इंग्लैंड की महिला और पुरुष शरीर के रहते, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, बराबर है। एक होटल में खाना खाते हैं तो वो भी पैसे देते हैं, वो भी पैसा देता है, दोनों में कैसा इक्वलिटी है, बराबर है। ये इक्वलिटी जब भारत में आएंगी, बराबर है, तब है ना समझ जाना कि भारत बहुत आगे बढ़ेगा। और इक्वलिटी कौन ला सकता है? तुम महिला ला सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको पुरुष से ज़्यादा फ्रीडम दिया है, लेकिन तुम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ते हो। नहीं तो भारत में आज कॉन्स्टिट्यूशन ने पुरुष प्रधान संस्कृति नहीं रखा है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ओरिजिनल पढ़ाई करेंगे तो स्त्री प्रधान संस्कृति भारत में आ सकती है, स्त्रियाँ राज कर सकती है, लेकिन स्त्रियों के पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए समय नहीं है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका है। इतना बोलकर मेरे 2 वाक्य को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पिरेशनल थॉट्स। चांद को चांदनी मुबारक हो, फूलों को खुशबू मुबारक हो। चांद को चांदनी मुबारक हो, फूलों को खुशबू मुबारक हो। हमारे तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्र दिवस मुबारक हो, स्वतंत्र दिवस मुबारक हो। So now we are at the end of this program. So I would like to call Master Naitik Devde to propose vote of thanks. कुछ हाथ से मेरे फिसल गया, वो पलक झपक कर निकल गया। जब लाशें बिछ गई लाखों की, सब पलक झपक कर बदल गया। जब रिश्ते राख में बदल गए, इंसानों का दिल दहल गया। मैं पूछ पूछ कर हार गया, क्यों मेरा भारत बदल गया, क्यों मेरा भारत बदल गया। गुड इवनिंग टू ऑल। I am Master Naitik here for proposing vote of thanks to all. First of all, I thanks Almighty God for making the today's occasion a resounding success. I thanks Vandile sir for giving their presence in from their busy schedule. I also thanks most of the participants who prepared nice speeches and kept most of the serious points which should be executed by the government soon.